Hello everyone, I am Rihana Sheikh and I am going to teach you OC of 11th standard. Let's see the index part, what all chapters are going to come in 11th standard. First chapter is Introduction of Commerce and Business. Second, Trade. Third, Small Scale Industry and Business. Fourth, Forms of Business Organization 1. Fifth, Forms of Business Organization 2. Sixth, Institutes Supporting Business. Seventh, Business Environment. Eighth, Introduction to Management. In my previous video, I have discussed what all things are reduced because of COVID-19. Many topics are reduced. Reduce means that topic is for self-study only for this year. After this year, this topic will be included. The reduced topic will be included again. And the reduced topic will not come for your board exam. It is non-evaluative topic. In the chapters only I will discuss what all topics are reduced. Let's start with the first chapter, that is Introduction of Commerce and Business. In Introduction of Commerce and Business, what all topics are going to come for your exams? In this chapter we will study introduction, non-economic activities, economic activities. Under economic activities, there are three topics. One is business, second profession, third is employment. Then business objectives, role of profit in business, classification of business activities. In that we have to study industry and commerce. Then distinction between summary and exercises. First we will see the introduction part of first chapter. See, all human beings require different types of goods and services to satisfy their needs. So they keep themselves busy and do some activity throughout their life. All activities can be classified as economic and non-economic activities. So जो आप function perform करते हो throughout your life, that function is known as human activities. आप जो भी activities perform करते हो आपके life में, उसको human activities बोलते हैं. हर human being को अलग अलग activities perform करते रहना होता है to go through their life. So वो activities को human activities बोलते हैं. But if you classify human activities, it is classified into two. अगर आप अपने एक्टिविटीज को क्लासिफिकेशन दोगे तो इसको आप दो क्लासिफिकेशन दे सकते हो. एक है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन्स वो एक्टिविटी जिससे आपको कोई इनकम नहीं, जिससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, जिससे आपको मॉनेटरी रिवॉर्ड नहीं मिलता, उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं. और इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन्स वो एक्टिविटी जिसको परफॉर्म करने से आपको कुछ ना कुछ अर्न हो रहा है, आप कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हो, कोई इनकम आपको आ रही है, कोई प्रॉफिट आपको आ रहा है, उसको आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हो. सो ह्यूमन एक्टिविटीज के दो मेन क्लासिफिकेशन है. वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज नॉट रिलेटेड टू मनी. मीन्स ये एक्टिविटी परफॉर्म करने से आपको कोई मॉनेटरी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा. इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन्स दैट एक्टिविटी विच इन टर्न यू विल गेट अ मॉनेटरी रिवॉर्ड. ऐसे एक्टिविटीज परफॉर्म करने से आपको मॉनेटरी रिवॉर्ड्स मिलते हैं, उसको आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहोगे. जिनके अगेन तीन क्लासिफिकेशन है. वन इज बिजनेस. बिजनेस करते हो तो आपको बिजनेस करने के रिवॉर्ड में प्रॉफिट मिलता है. प्रोफेशन परफॉर्म करने पे आपको रिवॉर्ड में फीस मिलता है. एंड एम्प्लॉयमेंट करने से आप किसी के अंडर एज एन एम्प्लॉय काम करते हो तो आपको रिवॉर्ड में सैलरी दी जाती है.
सो ये तीनों एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज के क्लासिफिकेशन है. इन while doing business you will get profit as a reward, while performing profession you will get fees as a reward, while performing employment you will get salary as a reward. Let's see non-economic activities deeply. Non-economic activities को deeply देखेंगे. Non-economic activities वो human activity है जो आप आपके सेटिस्फिकेशन के लिए परफॉर्म करते हो. अब अपने खुशी के लिए जो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो, कोई मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन नहीं चाहते हो, उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं. पर्सनल सेटिस्फैक्शन मीन्स आप सोशली कोई काम कर रहे हो, कोई सोशल बेनिफिट के लिए काम कर रहे हो, जैसे कि आप सोशल वर्कर हो, किसी के चाइल्ड केयर के लिए आप काम करते हो, किसी लेडीज के लिए आप काम करते हो, जिसके बदले आप कोई रिवॉर्ड एक्सपेक्ट नहीं करते, उसको आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कह सकते हो. रिलीजियस काम के लिए आप परफॉर्म कर रहे हो, जैसे मंदिर में बैठते हो, मंदिर की साफ सफाई करते हो, या फिर आप मस्जिद में बैठते हो, उसकी साफ सफाई करते हो, जिसके लिए आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, उसको आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कह सकते हो. आपके कल्चर के लिए आप जो काम परफॉर्म कर रहे हो, जैसे घर में पूजा रखना या फिर कुछ कुरान खानी कराना, ऐसे कुछ काम कराते हो, तो ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है. सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट्स जिसका कोई मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन नहीं है, उसको आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कह सकते हो. जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं. रीडिंग बुक्स, बुक रीड करते हो, क्या बुक रीड करने के लिए आप कुछ मॉनेटरी रिवॉर्ड मांगते हो? नो ना. सो रीडिंग बुक्स एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है. सर्विंग पीपल, जैसे आप कहीं पर भंडारा है, वहां पर खाना खिला रहे हो, तो वो चीज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में परफॉर्म कंसीडर की जाती है. कुकिंग बाय मदर, these are all non-economic activities. Now come to economic activities. Actions that involve production, distribution and consumption of goods and services at all levels within a society is called economic activities. मतलब ऐसे एक्शन जिसके वजह से प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का हर लेवल पे सोसाइटी के अंदर, इसको आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कहोगे. ओके. सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन्स वो एक्टिविटी जिससे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज की जा रही है. एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है. वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री. वर्कर जो फैक्ट्री के अंदर काम करता है, वो अपने काम के लिए वेजेस चार्ज करता है, तो वो जो वेजेस है उसके वजह से या फिर वर्कर का फैक्ट्री में काम करने से प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कंजप्शन वाला काम हो रहा है, जिसके रिटर्न में वो क्या ले रहा है? वेजेस ले रहा है. तो इन रिटर्न वो कुछ ना कुछ ले रहा है. दैट एक्टिविटी इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्लियर? So what is business activities and what is non-economic activity? Economic activity means that activity for which in return monetary rewards are given. Examples are business, profession and employment. Non-economic activities are those activities in return monetary rewards are not given. That activity is known as non-economic activity. Examples are given here. Reading books, serving people, cooking by mother. And economic activities example is given here. Worker working in a factory, that is all called economic activity. Thus economic activity facilitate earning livelihood. तो economic activity perform करने से आपको earning मिलता है आपके livelihood को चलाने के लिए. Rest of the topic we will continue in next video. Thank you.